ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਸ ਆਲਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ मैं ना बोला, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर का आत्मा बोला। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोलोगे, आत्मा अपने आप तुम्हें बोलने का सामर्थ्य देगा। पर अब तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शून्य करना है, जीरो करना है। मैं अपने आप को शून्य और जीरो करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा मेरे ऊपर अपना कंट्रोल ले लीजिए। मेरी जुबान के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर मैं आपका कंट्रोल मांगती हूँ। ब्लड ऑफ जीसस में मैं अपने आप को, मेरे जिंदा खुदा, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, आने वाले बच्चों को, अपने परिवार को ब्लड ऑफ जीसस में कवर करती हूँ। यहाँ जितने जन मौजूद हैं इन सबको ब्लड ऑफ जीसस में कवर करती हूँ। स्वर्गदूतों का पहरा मांगती हूँ, आपका बाड़ा मांगती हूँ। मेरे जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर में अपनी अथॉरिटी को लेती हूँ, सांप और बिच्छू को कुचलने की, जमा सिंह और अजगर को लताड़ने की जो आपने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार को लेकर मैं शैतान की एक योजना को, एक एक प्लान को अपने अपने परिवार की जिंदगी से, उन सबकी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। और आपके अधिकार को अपने ऊपर, इन सब के ऊपर मांग लेती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं इन सब का आने वाला सम आपके बलवंत हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा, मेरी जुबान, मेरी सोचों के ऊपर आपका कब्जा मांगती हूँ। मैं ना बोलूं, आपका आत्मा बोले, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਿਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ, ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਟੀਚਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। सब तो बेस्ट टीचर परमेश्वर, सब तो बेस्ट टीचर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कैसी, मेरे चेले, चेले मतलब प्रभु यीशु मसीह टीचर सीगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਗਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਅਗਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਡਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਦੀ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟੀਚਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਅਗਵਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਟੀਚਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੀਚਰ, ਅਗਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਿਮੋਥਿਉਸ ਸੀਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਵਾ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
कई कहते साढ़े कईयां ਲਈ आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप, कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने समझ नहीं आती, वो फिर उन्होंने की बनाते अपना पिता बना लेंगे। एक आत्मिक पिता, एक संसारिक पिता, एक आत्मिक पिता, वो पिता बन जाते। जिदा पौलुस ने थिमुथियुस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇ, मैं किसी दी वो नहीं कर रही, क्योंकि यूट्यूब ते जान गई चीज़ां। मैं जिदा जूम मीटिंग जानी है किसी दे, उत्थे कहंदे पापा किद्दां, एकदम पहले उन्नू जानो, उदा करैक्टर जानो किद्दां दा है, फिर उन्नू आत्मिक पिता और आत्मिक माता बनाओ ना। एकदम किद्दां कह दिंदे कि तुसी साडे अगवे हो, पहले उन्होंने जानो, साल 6 महीने चलो, फिर तुसी उन्होंने सोच के आत्मिक पिता अगवा बनाओ। पापा एकदम बोल देना बहुत वड्डी गल, और तुसी उन्होंने पापा बोल रहे हो, अगो तुहानू जानदे भी है, थोड़ा फोन सुन। पिता की जिम्मेवारी हुंदी बच्चे नू हमेशा अपने नाल लेके चलना। कहना बड़ा ईजी है ना, पर असी कह देंगे असी पुत्र वाली जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी, किसी को पिता ना कहना, किसी को गुरु ना कहना, तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही गुरु है, पवित्र आत्मा। हुण कई गल्लां तुहानू मैं नहीं दस पांदी, तुसी बाइबल जो पढ़ते हो, पर वो कई गल्लां कौन समझा रहा हुंदा, परमेश्वर दा आत्मा, जो साडा सहायक है, जो साडा हेल्पर है, जो साडी मदद सहायता करदी। मैं फिर गल करनी, मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हाँ, मैं पास्टर्स के खिलाफ नहीं हाँ, मैं अगुआं के खिलाफ, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं, पर मैं बाइबल चो गल कर। अगर तुहाडे दिल है तुसी बनाओ, मेरे भी अगवे है, पर मैं पिता किसी नू नहीं कहंदी, माता किसी नू नहीं कहंदी। हालेलुया। जो तुसी बाइबल नू पढ़ोगे, अच्छे तरीके ना पढ़ोगे, फिर तुहानू पता लग जाएगा कौन किनू कहना है, किनू किद्दां कहना। हालेलुया। अगर जो तुसी किसी नू बनांदे हो, ओदी जिम्मेवारी हुंदी है, तुहाडा फोन हमेशा उठाएगा। हुण मैनू मनीषा ने किया है, मैनू कई जने इत्थे कहंदे कि साडे बहुत ज्यादा, मैनू उन्हां नू रिस्पोंस देना ही पैंदा है, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है। प्रिया मसीह है, मेरे ऊपर ही डिपेंड है। जो भी राती 12 बजे मैसेज आएगा, मैनू रिप्लाई करना, क्यों, मेरे ऊपर डिपेंड है। वो जिम्मेवारी हुंदी माता पिता वाली, प्रॉपरली जिम्मेवारी निभानी पैंदी है। ये नहीं कि मैसेज करता फिर सुनना ही नहीं 10 दिन, फिर वो फादर किथे है, जो 10-15 दिन मैसेज ही नहीं सुन रहा, अस ते फादर कह दिता। जो फादर और माँ होंगी ना, मैं अपनी मम्मा नू फोन कर दी हाँ, मेरे मम्मा फोन उसी समय रिस्पोंस देंदे, सवेरे ते शामी, हाँ मेरी कुड़ी तेरा फोन आया सी, वो रिस्पोंसिबिलिटी हुंदी। हालेलुया। जो मैं कह रही सीगी, ते जो शिक्षक, उसके समान शिक्षक कौन है, परमेश्वर वर्गा टीचर कौन है, जो परमेश्वर अपने हत्थां दे विच रखदे है, अग दी भट्ठी दे विच सुटदे है और तैयार करदे, ताड़ना करदे। एक टीचर ताड़ना भी करता है। हुण जो मैं बोलना शुरू करना, मेरे अगे आयतां बोलनियां शुरू हो जानियां। भजन संहिता ते पढ़े ना, अगर वो तेरी ताड़ना करता है तो की कर, अपने सिर ते तेल समझ कि मेरे सिर ते तेल मड़िया, क्योंकि जरूरी है डांट टीचर दी। अगर टीचर प्यार करता रहेगा, बच्चा बिगड़, अगर ज्यादा ही मैं ताड़ी तारीफ करती रहा, तुसी बहुत अच्छे, तुसी बिगड़ जाओगे, घमंड आ जाएगा। कहते जाए सी घमंड, जिदों पिता परमेश्वर यहोवा स्वर्ग दे विच बैठ के, एक स्वर्गदूत सीगा जो पंखां तो बड़ी अच्छी आवाज है, रोज तारीफ सुनदा सी, रोज तारीफ, कहंदा ले परमेश्वर ने तो मैं ही खुश, कहना की आ गया घमंड। इसलिए मैनू भी मेरे टीचर्स तो डांट पैंदी है, मैनू भी मेरे अगुए तो डांट पैंदी है, नहीं जी सिस्टर जी ऐदा नहीं, ऐदा, समझ रहे हो, कि घमंड ना आ जाए। मैं भी कई चीज़ां नहीं जानती, मैं भी अपने अगुए तो पुछदी हाँ। इसलिए साडी जिंदगी च एक अगुआ, एक टीचर होना बहुत जरूरी है, जो सानू रास्ता दिखांदा है, किद्दां चलना है। पर सब तो बेस्ट टीचर परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर एक गल कहना चाहती है, कई बार परमेश्वर अगुए नू भी अलाउ नहीं करते कि फोन उठाए, कई बार परमेश्वर अगुए नू भी अलाउ नहीं करते कि तू ये लिए दुआ कर, क्योंकि परमेश्वर अपनी व्यवस्था, अपनी चीज़ां सिखाना चाहते हैं कि मैं किद्दां दा है।
कई बार नहीं हुंदा। मैं मेरी जिंदगी दा एक्सपीरियंस है। मैं एक बार बहुत जिदा बीमार सी, प्रॉब्लम्स दे विच सी, मैं फोन किते, किसी ने फोन नहीं चुके। मैं क्या आ की, पर खुदा मैनू उस समय कुछ सिखाना चाहते सी। पर मेरा सब तो वड्डा हथियार है बाइबल। मैं बाइबल लैके बह जांदी कन्ने, हुण खुदा बस गल्लां कर। तो फिर वो जो वचन आते फिर वो की करते, वचन सानू संभाल, तेरे वचनों से मुझे शांति मिलती। कई बार ऐदा दा समा आ जाता है, कई बार ऐदा कि सानू किसी दे वचन तो, किसी दी गल तो शांति आराम नहीं मिलता, चाहे पास्टर भी कह दें, हुंदा है ना, फिर भी तसल्ली नहीं मिलती, सकून नहीं मिलता। पर जो परमेश्वर दा वचन आंदा है, असी बाइबल च पढ़ते हैं, फिर सानू वो शांति, सकून मिलता है। फिर साडे अंदर शांति आनी शुरू होती। नहीं यार, क्योंकि जो परमेश्वर तसल्ली और शांति दिंदा कोई हो नहीं दे सकता। उसके समान शिक्षक कौन है? ओदे वर्गा टीचर कोई नहीं। बेस्ट टीचर प्रभु यीशु मसीह है। बेस्ट टीचर दुनिया दे, बेस्ट बेस्ट। जो अपने हत्थां दे विच लै लैंदे ना, जो टीच करवाना शुरू कर देना, फिर ओदा स्टूडेंट सब तो बेस्ट स्टूडेंट बनता है, जो प्रभु यीशु मसीह दे अंडर। मैनू कलाम पढ़ना, मैनू कलाम बोलना, मैनू कलाम तैयार करना, सब परमेश्वर दे आत्मा ने सिखाया। मेरा किसे ना नहीं मिलता। तुझे सुनिया भी होएगा शायद। बेस्ट मैनू सिखाया है किद्दां आयतां निकालनियां, किद्दां बोलना है और किद्दां कलाम करना है, किद्दां प्रार्थना करनी। मैनू कुछ नहीं आंदा सी, पर मैं खुदा दे आत्मा दी संगति कीती, अपने आप नू शून्य कीता। टीचर उन्होंने मेरे उत्ते टीचर बने, मेरी ताड़ना भी हुई। फिर मैनू खुदा ने सिखाया, इस लायक खुदा ने बनाया कि मैं किसी नू टीच कर सका। खुदा ने तैयार किया। बाइबल च चाक पर रख मुझे, अपने जलाल का बर्तन बना। जो परमेश्वर भांडा बनाते ना अपनी महिमा का, फिर उन्होंने बहुत 7 बार मिट्टी दे विचों छानिया जाता है। जी छाननी है 7 तरीके की है। फिर लास्ट जी बहुत बेस्ट बर्तन बनता है, हल्की मिट्टी, बहुत मुलायम मिट्टी निकलती है। सब तो महंगा बर्तन होंगे चीनी का बर्तन। वो परमेश्वर अपनी महिमा का बर्तन बनाते, छांट छांट के, छांट छांट के। हालेलुया। आयुब 36 अध्याय 22 लिखा है, देख परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? आयुब 36 22। उसके समान टीचर कौन है? शिक्षक कौन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हुण इहदे नाल ही 10 आयत को पढ़न जा रहे हैं, वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वह बुराई से दूर रहें। कान किद्दां खोल दिया? परमेश्वर कान खोल दे। अगर साडे कान खुले परमेश्वर की आवाज सुनने लई, हमेशा सानू एक आवाज आएगी, इधर नहीं मुड़ना, इधर मुड़ना। हुण तुसीं कोई गलत चीज यूट्यूब च देख रहे हो, एग्जाम्पल दे रही है, तुहानू आएगा नहीं ये चीज नहीं देखनी। वो परमेश्वर की आवाज है जो सानू परमेश्वर दिंदे है कि नहीं, आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर है। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से बिताते। जो परमेश्वर की आवाज नू सुनते है, कहना मनते है, आज्ञाकारी होंगे, अधीन होंगे है, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियावां ते चलते हैं, वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। मैनू ये 2023 कुछ दिनों तो लगातार 8वां महीना जिदा ही शुरू होया, मैनू खुदा इस कलाम के द्वारा गल करन लग पे। मैनू समझ नहीं आ रहा सी खुदा मैनू क्यों क्यों मैनू ये आंसर आ रहा बार 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 बार। एक सितंबर नू आया, 4 सितंबर नू, मैं कुछ समझ नहीं पा रही सी। बस मेरा काम सी, मैं पढ़ती सी, बंद कर देंदी सी, पढ़ती सी, बंद कर देंदी सी। अज की टीचिंग लिए शायद खुदा मैनू गलबात करनी शुरू कर दी सी कि देख परमेश्वर अपने समाज से बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर सानू राती सुते पे भी शिक्षा दे जाते हैं, ज्ञान दे जाते हैं। बेस्ट टीचर, हालेलुया, बेस्ट टीचर। उसके समान शिक्षक कौन है? वो नित भोर सवेरे उठांदा है, राती जगांदा है, सवेरे उठांदे है, दोपहरे, हर समय जो तुसी परमेश्वर की संगति चलते हैं, परमेश्वर साडी अगुवाई करते, अगुवाई करते किसी किद्दां किद्दां करना है।
यदि वे सुन के, अगर ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਇ ਤੱਕ ਕਿ हे ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। उन्होंने की क्या कि बुराई से दूर रहता है। परमेश्वर सानू हमेशा बुराई तो दूर रखते है। टीचर है, बेस्ट टीचर है परमेश्वर ने। थैंक यू लॉर्ड जिंदा खुदा। परमेश्वर ने मिशरियां दे विच ही इजराइलियां नू क्यों नहीं रहन देता, क्यों उत्थों कढ़िया, क्यों उत्थों कढ़िया? समझ आई गल? क्योंकि उन्हां दे कम बुरे सी, उन्हां दे कम, मिशरियां दे कम बुरे सी। परमेश्वर नहीं चाहते सी कि मेरे बच्चे ओ बुरे काम करन। परमेश्वर ने उन्होंने कढ़ के 40 साल जंगल दे विच शिक्षा दिती कि मेरे पिछे चलोगे, मेरा कहना मनोगे, ते मैं तुहानू संसार दियां सारियां चीज़ां दवांगा। दूध और मधु के देश पहुंचा दिता उन्होंने, जे उन्होंने सुनी। जिन्हां ने नहीं सुनी, परमेश्वर ने उन्होंने जंगल दे विच की कीता, मार दिता। जो कुड़कुड़ांदे सी, जो हठीले सी, परमेश्वर ने उन्होंने मार दिता, खत्म कर दिता। पर जो सुनते सी, हुण कौन सुनते सी? कलाम एकदम चेंज हो रहा और स्वर्ग तो कलाम शुरू हो गया। सिर्फ यहोशे ने सुनी सी और कालेब ने, कालेब है उहदा नाम, ओही जो जन सी जो 20 साल तो उपर सी उत्थे कनान देश दे विच पहुंचे सीगे। बाकी जिहड़े कुड़कुड़ाए सीगे 20 साल दे, उत्थे ही जंगल दे विच मर गए 60 साल दी उम्र दे विच। अगर वो 20 साल दे सीगे, कौन पहुंचे सीगे? सिर्फ 2 जने पहुंचे सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 4:50 अध्याय ਉਹਦੀ 4 आयत ਨੂੰ कोई मेरे लिए पढ़ेगा? प्रभु यहोवा ने मैनू चेलियां दी जुबान दिती कि मैं जाना कि गुस्से होए नू किवें वचन नाल सहायता देवां। ओ मैनू सवेरे सवेरे जगाउंदा, ओ मेरे कन्नां नू जगाउंदा है कि मैं चेलियां वांग सुना। हालेलुया, हालेलुया। 5 आयत भी। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले तां मैं ना आकी होया ना पीछे हटिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, सीखने वालों की। पहले असी प्रभु को सीखते हैं, सीखन वाली जीभ। पहले असी प्रभु को सीखते हैं, आत्मा दे विच उस जीभ दे विच सीखते हैं कि जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचनों के द्वारा संभालू। पहले परमेश्वर सानू कलाम पढ़वांदे है, सिखांदे है कलाम, फिर असी उस कलाम नू बोलते हैं। कौन? थके हुए नू संभालिए। थके हुए लिखे ना कि मैं थके हुओं को अपने वचनों के द्वारा संभालू। भोर को वह नित मुझे जगाता है। किनू जगांदा सी? यशाया नू जगांदा सी। भोर को वह नित मुझे जगाता है, मेरे कान खोलता है। परमेश्वर कान खोल दे, मेरी आवाज नू सुन। हुनी असी पढ़िया ना वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। जेदे कान खुले ही नहीं, वो सुनेगा कि? वो कहेगा ਇਹਦਾ प्रचार ही सही नहीं है, ये टीचर ही सही नहीं है। क्योंकि आत्मिक कान नहीं है साडे खुले, संसारिक कान खुले हुए। दूर किते गाना बजदा सानू सुन जाएगा।
ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਐਦੀ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਭੋਰ ਕੋ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੁਣੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇਗਾ, ਆਇਤ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਰਾਈ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਬੋਲੋ, ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਬੋਲੋ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਸਮਾਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਏ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? शिक्षक के समान सुनू। 5 आयत, प्रभु यहोवा मेरा कान खोलता है। परमेश्वर ही साडे कान खोलदे जो ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੋਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਖੋਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਲੀਹਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਆਂधी आई, तूफान आया, सन्नाटा आया, फिर हल्का जिहा आया, हे एलिहा ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਊਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਤੂਫਾਨ ਸन्नाटा ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲਾੜ ਬੋਲ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਹੈ। और जो परमेश्वर की आवाज है, चुप रह, शांत रह, मैं तेरा मुकदमा लड़ांगा। मैं किसी ना जल्दी लड़ती नहीं, किसी ना जल्दी बोलती नहीं, किसी ने जवाब नहीं देती। कल भी मेरे हसबैंड ना कुछ बोल रहे थे, मैं चुप रही। कहते तू ना बोली ओनू जाके इदा। मैं क्या आए कदी बोलिया नहीं, किदा बोला। मैं फिर चुप कर गई। मैं क्या मैनू ना खुदा ने एक ही गल कही थी, तेरे वालों मैं लड़दा, तू चुप रह। मैं सिर्फ इस एक जवाब देके चुप जागी। मैं क्या मैं नहीं दे सकती किसी को जवाब। खुदा मेरे वालों लड़ते पे, खुदा मेरे वालों बोलते पे, मैं क्यों बोला, मैं क्यों जवाब देवां? मेरा काम प्रार्थना करना है। अगर कोई मेरा विरोधी है तो मैं सिर्फ ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करा, मैं जाके अपनी क्लीयरेंस ना देवां,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ। ਡਿਪੈਂਡ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਦੀ डिपेंड। प्रभु यहोवा मेरे कान खोलता है, मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਹੈ 94 ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। भजन संहिता जबूर 94 ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। हे यहोवा, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ? अपनी व्यवस्था सिखाते हैं। टीचर अपनी व्यवस्था, नियम कानून, बाइबल पढ़ांगे परमेश्वर ताई साडी जिंदगी च एक व्यवस्था है कि व्यवस्था होंदी कि नियम, इस नियम कह लो कि अपनी जिंदगी च ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ। बाइबल है मैनू आयत मेरे, मैंने तेरी ताड़ना तो की पर बछड़े की तरह की जैसे निकाला नहीं। मैं लभदी रही पर मैनू मिली नहीं। पता नहीं किस यशाया च है कि यर्मिया दे विच है, किसी नबी दे विच हैगी कि मैंने तेरी ताड़ना तो की पर बछड़े की तरह नहीं की। मैंने तुझे निकाला तो सही पर उदा नहीं निकाला, मैं तुझे फिर अपनाऊंगा। परमेश्वर साडी ताड़ना करदे, सानू अपने तो दूर भी करदे कि मैं देखा कि किद्दां दी चाल चलदा पिया। पेपर देने ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਾ। ਐਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋੜਤਾ ਸੀ। हे यहोवा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਵਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ। ਆਯੂਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਰੂ, ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 141 141 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਨਹੀਂ 141 141 ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇ हालेलुया। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। अगर कोई सानू ताड़ना दा कुछ भी कहता है, अगर टीचर कुछ भी कहता है, तो साडे सिर ते तेल मलिया जाता है, अभिषेक हुंदा है। तेल मलना अभिषेक ही है सिर ते, वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लीन रहूंगा। मतलब कोई जो भी करे, असी प्रार्थना करते रहना है, ये अलग टॉपिक है। पर मेन जिस टॉपिक ते कि परमेश्वर साडी ताड़ना करनगे ही करनगे। एक अच्छा टीचर ओही है ते ਜਦੋਂ परमेश्वर ताड़ना करदे है, फिर परमेश्वर जिस गड्ढे दे विच सुੱਟਦੇ है, फिर उस गड्ढे दे विचों सानू निकालदे भी है। यशाया 48 ਉਹਦੀ 10 आयत, ये मैं पढ़ देंगी। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। फिर साडा लैवल वधदा जांदा है, सानू परमेश्वर होर क्लोज आंदे जांदे है। एकदम ही साडा एकदम ही इन्ना मसा एकदम ही इन्ना अभिषेक थोड़ी आ जांदा है स्टार्टिंग दे विच। एकदम ही सेवक ही थोड़ी करन लग पैंदा जो बाइबल पढ़दा या टीचिंग लैके आ जांदा, नहीं। परमेश्वर की करदे, देख मैंने तुझे निर्मल परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुना है। मतलब कि परमेश्वर साडी हुन एमए एकदम 10वीं तो सीधा एमए ते नहीं चले जाओगे, +1 +2 बीए करोगे, एदी लेवल है। परमेश्वर कहते दुख की भट्टी चो परख के सानू टीचर टेस्ट हुंदे है। परमेश्वर साडा असली टीचर जो सानू दुख दी पट्टी दे विचों परख कर चुनदा है। चांदी दे समान सोने नूं मैं तुहानू एक बार पहले सोने दा किद्दां सोना किद्दां साफ कीता जांदा है, कीता जांदा ना, सोना किद्दां साफ कीता जांदा है, किन्नियां चीजां चों निकलना पैंदा। फिर सोने दे जदों ताया सोना हुंदा ना, ओहदे विच असीं अपनी शक्ल देखदे हैं, शक्ल देखते हैं ना। परमेश्वर कहते मैं जो तेरे विच अपनी शक्ल देख लवांगा, फिर परमेश्वर जो परमेश्वर कहते ये मेरे वर्गा है, पिता पुत्र एक। तो साडे विच की है, परमेश्वर वर्गा नेचर सुभाव आ जाएगा। फिर वो परमेश्वर सानू बनाना चाहते हैं टीचर, असली टीचर। असी सिर्फ अगुवे हैं, मैं सिर्फ अगुआ है, संसारिक टीचर आ, संसारिक टीचर संसारिक अगुआ, पर असली टीचर असली अगवा परमेश्वर। हुण क्लास दे विच 50 स्टूडेंट है, सारे इंजीनियर तो नहीं बन जाते, सारे डॉक्टर तो नहीं बन जाते, सारे बिजनेसमैन तो नहीं बन जाते। ऐदी के स्कूल है जो बाइबल स्टडी स्कूल, असी जो बाइबल नूं सिखदे पे हैं, डिपेंड स्टूडेंट दे उपर भी बहुत कुछ है कि वो अपने टीचर की किन्नी आवाज नूं सुन रहा है, किन्ना सीरियस होके क्लास दे विच बैठा है, किन्ना सीरियस होके वो अपने टीचर को जा रहा है। जो तुसी बहुत सीरियस होके परमेश्वर दे कोल जाओगे, समझ रहे हो जो मैं गल समझ, जिन्ना सीरियस होके परमेश्वर दे कोल जाओगे, घुटनियां दे बल जाओगे, जिद्दां भी जाओगे, डेली जाओगे, तुसी परमेश्वर को कुछ ना कुछ लेके आओगे, खाली नहीं आओगे। परमेश्वर कोई ना कोई आए तुहाडे दिमाग दे विच बिठा ही देंगे। तुसी डेली बाइबल पढ़दे, डेली बाइबल पढ़, इसलिए परमेश्वर ने सानू अपनी दुख दी पट्टी ते विचों पखा के चुनिया है। अपने नियमित, हाँ अपने नियमित मैंने ये किया है। अगर किसी गलत है ना, मैं एक गल कहना चाहती हूँ, साडे टीचर दी इंसल्ट होएगी जे तुसी नालायक हो ना, याद रखना टीचर दी और स्कूल दी बेइज्जती हुंदी है। तुहानू आ सिखाया जांदा है स्कूल दे विच, तुहानू आ सिखाया जांदा है। इसलिए जो साडा अच्छा करैक्टर होएगा, साडे अंदर साडे टीचर दा स्वभाव होएगा, प्रभु यीशु मसीह दा स्वभाव होएगा, ते साडे टीचर नू सारे जानन दी कोशिश करनगे कि इन्हां दा टीचर बड़ा अच्छा है, मैं भी उत्थे ट्यूशन पढ़न जाना, यही कहोगे। लोकी अपने आप साडी चाल करैक्टर नू देख के मसीह दे विच एंटर हो जाणगे। हालेलुया।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਕਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਧੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। मैं लास्ट एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ, दूसरा इतिहास 33 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, क्योंकि जो फिर पढ़ाएंगे उसके समान शिक्षक कौन है। उसके समान शिक्षक कौन है? अयूब 36 अध्याय उदी 22 आयत में पढ़िया फिर दोबारा। तब संकट में पढ़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। कौन? मनशे, जो बहुत बुरा सीगा, बहुत बुरा सीगा। मनशे ने इन्ना बुरा काम किया सी, मनशे ने अपने बेटे नू ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, जला दिता सीगा। ये अगर तुसी पढ़ना चाहते हो 6 दे विच लिखिया है, फिर उसने हित्रोम के बेटे की तराई में अपने बेटे को होम करके चढ़ाया। उत्थे दे लोग किद्दां दे करदे सी। परमेश्वर ने क्यों लिखिया कि कनान देश के लोगों का काम नहीं सीखना। परमेश्वर ने उस कौम नूं क्यों खत्म करता सी? अपने बच्चों नूं, लोकां नूं बली करदे सी, मारदे सी, जिंदे बच्चों नूं अग दी भट्ठी च सुट दिंदे सी। परमेश्वर पसंद नहीं करते इस चीज को। मनुष्य ने कितनी वड्डी गलती की सी, कितनी वड्डी गलती की सी, पर फिर उन्होंने की किया? अगर असि 11 च पढ़े, तब यहोवा ने उस पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई करा के और ये मनुष्य को निकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़ कर उसे बेबीलोन को ले गए। कितने चला गया? बंधुआई दे विच चला गया। कौन? मनुष्य। नकेल पा दी। की होया? फिर उन्हें मन फिराया। टीचर, शिक्षक, अपनी व्यवस्था सिखाने वाला, अपने नियम सिखाने वाला, जलाहट रखने वाला परमेश्वर जो टीचर है साडा, वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ, उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। जो दीन होया, उन्हें माफी मंगी परमेश्वर तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था सिखाई कि मैं ही जिंदा खुदा है। बंधुआई च लेके जान वाला भी परमेश्वर है, बंधुआई च वापस लेके आने वाला भी परमेश्वर है। वेस्ट टीचर, वेस्ट अगवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह है। 3 साडे को है, फिर भी असी समझ नहीं पा रहे कि ज्ञान की है। फिर प्रभु परमेश्वर कहते ज्ञान ना होने करके मेरी प्रजा नाश हो रही, ज्ञान ना होने करके तुसी बीमारियां च जकड़े हो, ज्ञान ना होने करके तुसी गरीबी दे विच हो, ज्ञान ना होने करके तुहाडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ दे विच, बच्चों की लाइफ दे, हर एक लाइफ, क्योंकि ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की आवाज नूं सुनदे नहीं, अपने गुरु की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज नूं सुनदे नहीं, जिहदे करके प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। लौटा लाया। तब मनुष्य ने निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, असली टीचर परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए अज आपां कहिए कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं अपनी जिंदगी दे विच तुहाडा वेलकम करदी, मैं अपनी जिंदगी दे विच वेलकम करदी हां। पवित्र आत्मा, अगर तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी ओ हजूरी, परमेश्वर दी ओ जगह नहीं है, तो तुसी बनाओ। पवित्र आत्मा ना गलबात, परमेश्वर ना गलबात करनी शुरू करो। परमेश्वर तानू रिस्पॉन्स दोगे ही दोगे। बाइबल चो क्वेश्चंस करो, गल्लां बातां करो। असली टीचर तानू ज्ञान, गूढ़ भेत दियां गल्लां जो परमेश्वर सिखा सकते हैं, शायद वो मैं भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैनू भी खुदा नहीं सिखाया। कि मैं अगुआ जरूरी है। कोई बच्चे सुने ना कहे कि अगुए के बरखिलाफ हो गई है। नो, अगुआ जरूरी है, टीचर जरूरी है। एक संसारिक कि असीं की करिए, किद्दां पढ़िए बाइबल, किद्दां चलिए परमेश्वर च, किद्दां प्रार्थना करिए, किद्दां रोजा रखिए, क्योंकि नवियां नूं नहीं पता हुंदा। इसलिए परमेश्वर नूं अपनी जिंदगी दे विच बुलाइए। परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच आओ, मेरियां सोचां दे उत्ते कब्जा करो। जिद्दां तुसीं यशाया नूं उठांदे सी, नित भोर को वह मेरे कान खोलता है कि मैं शिक्षक की समान सुनो। परमेश्वर मेरे कान खोलो कि मैं तेरी आवाज न सुनूं।
मेरे मेरे उत्ते कब्जा कर लो पवित्र आत्मा जी, मेरे उत्ते कब्जा कर लो, मेरी सोचां ते, मेरे बोलने दे, मेरे उठने बैठते कब्जा कर लो। तुसी मेरे गुरु हो, मेरी अगुवाई करो, अनंत दे मार्ग दे विच मेरी अगुवाई करो कि मैं किद्दां चलना, मैं किद्दां तुहाडे मन नू आनंदित करा, मैं किद्दां तुहानू खुश करा, मैं किद्दां तुहानू आनंदित करा। सिर्फ परमेश्वर दा आत्मा ही सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड मेरे जिंदा खुदा इस कलाम के लिए परमेश्वर, जो आपकी आत्मा के द्वारा मेरे जिंदा खुदा स्वर्ग से हमारे पास पहुंचा। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपने आज हमें सिखाया पवित्र आत्मा जी कि हमें कैसे आपके अधीन रहना है, क्योंकि आप ही हमारे असली टीचर हैं, अगुवे, हमारी अगुवाई करिए। हालेलुया, हम सब अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं, जीरो करते हैं, शून्य करते हैं। हमें सिखाइए कि हम आपकी आप कैसे चले मेरे जिंदा खुदा, हमारे कान खोल दीजिए मेरे परमेश्वर कि हम आपकी आवाज को सुन सके मेरे परमेश्वर। वान नखारसन नमशोरो सुन मुबाल खारसन, जैसे आप यशाया से बातें करते थे मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर, जैसे आप मेरे जिंदा खुदा हिजकेल से बातें करते थे मेरे परमेश्वर, जैसे आप यर्मिया से बातें करते थे परमेश्वर, हमसे बातें करिए मेरे जिंदा खुदा, हमारी अगुवाई करिए अनंत के मार्ग में। आप हमारे गुरु हैं मेरे जिंदा खुदा। खान ने खेला लखा रसन मशोर सन वाला लखा, जैसे आपने एक अनपढ़ पतरस को मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर अपना ज्ञान दे दिया मेरे जिंदा खुदा, कि वो मछलियों को पकड़ना छोड़ के मेरे जिंदा खुदा मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया मेरे जिंदा खुदा। आपने पतरस के अंदर ऐसा सामर्थ भर दिया मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। नाना न खान ने खेल लखा रसन्नमा वीन न खा रसन्नम शोरो सुन्नम वाला लखा रसन्नम शोरो सुन्नम बारसन। आज टीचर्स डे है मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, वेलकम 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 पवित्र आत्मा जी। दाना न खा रसना, मैं एक एक जिंदगी के ऊपर आपका वेलकम करती हूँ, एक एक जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। दाना न खा रसना में शोरो सुन्नम वालशा, जैसे आप मेरी अगुवाई करते हैं, इन सबकी अगुवाई करिए मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। मैं आपकी आवाज को और सुनूं मेरे जिंदा खुदा, मेरे कानों को और खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, इनके कानों को भी खोलिए, आपकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। मानन खेर सन्नम शोरो सन्नम वाला खारा सन्नम शोरो सन्नम दानन खारा सन्नम शीर सन्नम वाला खारा सन्नम, हमें बढ़ाइए मेरे जिंदा खुदा। दानन खेर सन्नम वाला खारा सन्नम शीर सन्नम शोरो सन्नम दारसन, जैसे यशाया ने विरोध नहीं किया मेरे जिंदा खुदा, ना वो पीछे हटा मेरे जिंदा खुदा, तो यशाया ने वो भविष्यवाणियां लिखी मेरे जिंदा खुदा, जो आज इस दुनिया में पूरी हो रही है मेरे जिंदा खुदा। आपने यशाया को मेरे जिंदा खुदा वो भविष्यवाणियां दी प्रभु यीशु मसीह की मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि उसके कान आपने खोले थे जो आपकी आवाज को सुनता था मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। आज हमारे कान भी खोल दीजिए मेरे जिंदा खुदा, हम आपके तखत के आगे, आपके ऑल्टर के आगे आए मेरे जिंदा खुदा, हमारे कानों का अभिषेक करिए मेरे जिंदा खुदा। रात दिन मेरे जिंदा खुदा, चलते फिरते उठते बैठते हम आपकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा, आप हमसे बातें करिए मेरे जिंदा खुदा। खाने ने खेर सन्नम वाला लखारा सन्नम शोर सन्नम दारसना, हम आपके मेरे जिंदा खुदा स्टूडेंट है मेरे जिंदा खुदा। दान ने खेर सन्नम शोर सन्नम वाला लखार मेरे जिंदा खुदा, जैसे आपने अपनी भेड़ों की अगुवाई की मेरे जिंदा खुदा, हम भी आपकी भेड़े हैं मेरे परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा आपने मूसा के द्वारा मेरे जिंदा खुदा, एक भविष्य वक्ता के द्वारा, एक चरवाहे के द्वारा मेरे जिंदा खुदा अपनी भेड़ों की अगुवाई की मेरे जिंदा खुदा। हमारे ऊपर भी जो आपने अगुवे ठहराए हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे ऊपर संसारिक टीचर ठहराए हैं मेरे जिंदा खुदा, हम उनकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा। आपने मूसा को यूज किया मेरे जिंदा खुदा, हमारे लिए जो आपने टीचर रखे हैं मेरे जिंदा खुदा, उनके लिए मैं आशीष और बरकत को मांगती हूँ मेरे जिंदा खुदा। उन्हें और ब्लेस करिए मेरे जिंदा खुदा, कि जिससे हम और ब्लेस हो सके मेरे परमेश्वर। बानन खेर सन्नम वार सन्नम, में मेरे जिंदा खुदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर परमेश्वर जितने दास है मेरे जिंदा खुदा, जो शिक्षक है मेरे जिंदा खुदा, जो टीचिंग दे रहे हैं बाइबल की मेरे जिंदा खुदा, जो पास्टर है मेरे जिंदा खुदा, मैं उन सबके लिए बरकत मांगती हूँ, सबके लिए आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। वो लोग मैं और आपकी इतनी आवाज को सुने परमेश्वर, की आपकी भेड़ों को बचा सके मेरे जिंदा खुदा। बानन खेर सन्नम शोर सन्नम दार सन्नम, जो मजदूर है मेरे जिंदा खुदा, जो तैयार हो रहे हैं मेरे जिंदा खुदा, मैं उनके लिए भी खास दुआ करती हूँ परमेश्वर, वो भी आपकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा, उन्हीं रस्तों पे चले मेरे जिंदा खुदा जो आपने तैयार किए मेरे परमेश्वर।
मेरे जिंदा खुदा आपके दास आपके अगुए हमें हमेशा हमेशा पुश करते हैं मेरे जिंदा खुदा कि हम इस काम को करें, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ें, इस वचन को पढ़ें, इस वचन को ऐसे क्लेम करें मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर। आप उनसे और बातें करिए मेरे जिंदा खुदा। दान ने खेरसन मुबारक खेरसन नम शोरस्तन मुबारसन नम शान ने खेरसन नम शोरस्तन मदारसन नम शोरसन। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी खास दुआ है मेरे जिंदा खुदा, हम सबके कान खुल जाए मेरे जिंदा खुदा। जो बाद में मेरे जिंदा खुदा इस दुआ को सुने मेरे जिंदा खुदा, उनके कान भी खुल जाए मेरे परमेश्वर। आपकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा। आपने कहा ध्यान देके सुन मेरी, ध्यान से सुन मेरी मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जैसे मेरे जिंदा खुदा इलिहा ने कहा, हे परमेश्वर मेरी सुन ले, हे परमेश्वर मेरी सुन ले मेरे जिंदा खुदा। आज आप हमारी सुन के हमारे कानों को खोल दीजिए मेरे जिंदा खुदा। मैं बड़ा अभिषेक मांगती हूँ, बड़ा मसा मांगती हूँ, बड़ी आजादी मांगती हूँ, बड़ा छुटकारा मांगती हूँ मेरे जिंदा खुदा। आज एक एक को छू लीजिए मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो कुछ मेरे जिंदा खुदा आज के कलाम के द्वारा हमने सीखा है वो हमारी जिंदगियों में पूरा हो परमेश्वर। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शैतानी ताकत उस कलाम को चुरा ना सके परमेश्वर। ये कलाम हमारी जिंदगियों में 1000 गुना 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमेन आमेन आमेन। गॉड 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 ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोई कुछ कहना चाहता है कह सकता है। हैंड ओवर करेंगे, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके हाँ जी प्रीत मेरा रेडी, बोलो। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह की। सारे जय मसीह पास्टर जी। कल मेरी परसों तो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। रात तो इन्नी कंडीशन खराब हो गई तो एक तो बीपी मेरा जो उपरला बीपी आ वो 80 रह गया, नीचे वाला 70 रह गया। मैं तुर फिर भी नहीं सकन दी थी। एक लांग पटदी सी डिग जानी थी, एक लांग पटदी डिग जानी, जिसमें हो गई कि शरीर जो ना बर्फ से लग गया। तो प्रभु की कृपा ना रात जब मैं तुहानू फिर पहला तो मैं भेजी नहीं फिर रिक्वेस्ट, फिर मैं अपने पास्टर जी ने फिर दा कहनी है, फिर प्रभु की कृपा ना हिम्मत करके मैं तुहानू मैसेज सेंड किया। तो पास्टर जी रात में ना नींद बना आ गई। फिर मैं प्रकाश वेता जो सेंड किया उन्होंने मैं ला के अपने सराहने थोड़ी जी आवाज स्लो करके तो सुनती रही, सुनती सुनती मैंने नींद आ गई। जान के पहले मैंने नींद नहीं आती, मैंने समझ नहीं लगता था मैं की करा। तो वो सुनते सुनते प्रभु की कृपा ना मैंने नींद आ गई। मैंने पता नहीं मैं कितने कितने तो रात उल्टियां भी मैंने इन्ना आ रही थी ना कि जो कुछ खादा सी मेरा निकल ही आ रहा था। तो शरीर बहुत ज्यादा वीक हो गया सी मेरा, मैं समझ ही नहीं लगता थी मेरे शरीर में की हो जाता था। पर प्रभु की कृपा ना जब मैं रात सुती सुबह उठी हाँ, परमेश्वर की कृपा ना बहुत फर्क सीगा। मैं धन्यवाद किया प्रभु का। तो अज काफी मतलब कि हुण तक तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो 2 दिन मैं खाना भी नहीं घरे बना पाई, इन्नी मेरी तबीयत खराब सी। खाना भी बोला लिया खाते रहे, इन्नी कंडीशन एकदम बैड हो गई। पर फिर भी प्रभु ने उठाया। मैं प्रभु ने कहनी कि मैं गोली नहीं खानी, मैं दवाई लै आई डॉक्टर को, एक खुराक खा भी ली, वो दवाई ने मैंने होर डेड करता। पता नहीं आ प्रभु जाने कि मैंने दवाई खानी चाहिए थी कि नहीं, पर जी दवाई मैं डॉक्टर को लैके आई थी ना, डॉक्टर ने मैंने नैरोबिन का इंजैक्शन लाया, मैंने ओहदा पता लग जाता नैरोबिन के इंजैक्शन लगे दा कि मैंने ओहदा इंजैक्शन लगा क्योंकि वो दुखदा वा 2 दिन। तो मैंने ये पता लग गया कि डॉक्टर ने मैंने नैरोबिन का इंजैक्शन लगा है कि जी दवाई दी पास जी मैं एक ही खुराक खाधी, वो भी उदों जो आके खाधी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे को बिल्कुल डेड हो गई बॉडी, मेरे को उठा नहीं गया, मेरे को बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई कल। तो बाकी दवाई उस तरह ही पई है। फिर मैं प्रभु ने कहा प्रभु जो काऊ पंछी बल लै सकता प्रभु, तो मैं कहा प्रभु तुम सानू भी बल दे सकते हो। फिर मैं प्रभु अगे दुआ मैं क्या प्रभु कि मैं दवाई नहीं खा सकती, मेरे को नहीं खाती जाए। तो प्रभु की कृपा ना सुबह का अपनी डाइट वाली ध्यान दिता कि जो नहीं खाना धक्के ना खान दे सिस्टम दे अंदर प्रभु का ब्लड बना। तो प्रभु की कृपा ना उठिया सारा काम भी किया, खाना पानी भी अपना दोनों टाइम घरे बनाया। परमेश्वर ने बहुत ही तंदुरुस्ती दी है, धन्यवाद करती हूँ खुदा का। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੋਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਈ।
ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਲਪਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ। God bless you please ਮੇਰਾ teacher ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਬੋਲੋ ਅਮਿਤ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ